Hello students. Today in today we will discuss about the next chapter, that is the caged parrot. In this chapter we will talk about a parrot who lives freely in the garden of the king, but he never take care of the rules and regulations of the kingdom of the king's kingdom, and avoid many things just like a illiterate. The kings became angry upon this and ordered his nephews to take care of his education, its educations. Many scholars are called. They gives their opinions. They did many things to make the parrot literate, but at last they lost the parrot. So this is the summary. Now we will discuss the story between the lines. Okay, so as it is titled the caged parrot, in the beginning it was roaming here and there freely, but when he was made to become literate, he he was put into a cage. So now, without wasting any time, come to the chapter. But before starting the story, there is a picture given, and there is a man who is uttering some words for the animals. And what he is saying, for a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. So here question is given for you. Discuss what is wrong with the masses in the picture. So this person is saying these animals before him, the animals that are before the man, are are of different capabilities. Elephant can't climb upon tree, penguin can't, fish can't, dogs can't, monkey can, but this person is judging them and giving them task to climb upon the tree for a fair selection. So the question is that type of selection procedure is fine or good for all the, or you can say either it is fair or not. You have to tell about this. So think about it and answer me after answer me in assignment query. Okay, so now move to the story up. Firstly we will read the para one by one, then after I will explain. Once in a land far away there lived a parrot. It sang songs, jumped about and flew, but it never read the scriptures or cared about the customs and conventions. It was an illiterate bird. Once in a land far away. एक बार दूर कहीं किसी जगह पर देयर लाइव्ड अ पैरट, एक तोता रहता था. इट सैंग सॉन्ग्स, वो गाना गाया करता था. जम्प्ड अबाउट, और इधर उधर कूदा करता था पेड़ों पर. एंड फ्लू, और उड़ा करता था. बट इट नेवर रीड द स्क्रिप्चर्स, लेकिन उसने कभी भी स्क्रिप्चर्स मीन्स जो पत्थरों पे लिखा हुआ होता है, या पत्थरों पे या जो पेपर्स पे लिखते हैं रूल्स रेगुलेशंस, जो किंगडम में पहले राजाओं के क्या करते थे, उनके जो रूल रेगुलेशंस होते थे वो पत्थरों पे या किसी बड़े बड़े पत्थरों पे लिखवाते थे,
या किसी आयरन पोल पे लिखवा दिया करते थे। तो ऐसी चीज़ें करते तो उसी को स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। तो वो कभी भी उन स्क्रिप्ट्स को नहीं पढ़ता था और केयर्ड अबाउट द कस्टम्स, और ना ही कभी किसी भी कस्टम्स जो वहाँ के कस्टम से रीति रिवाज थे उनको उनकी उनका ख्याल नहीं रखता था, उनका ख्याल नहीं करता था, उसको जस्ट अवॉइड कर देता था। एंड कन्वेंसस, और उसकी जो प्रथाएं होती थी वहाँ की उन सारी चीज़ों को। इट वॉज एन इलिटरेट बर्ड, वह एक अनपढ़ चिड़िया था, तोता था। द किंग वॉज माइटी डिस्प्लेज विद द बर्ड, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा नाराज़, मतलब नाखुश हो चुका था, रहता था। वॉट अ गुड फॉर नथिंग बर्ड, ये किस काम का है, मतलब ये चिड़िया जो है किसी काम का नहीं है। ऑल इट डज इज़ इट फ्रूट्स फ्रॉम द फ्रूट गार्डन, जो कुछ भी ये करता है वो यस इतना ही करता है कि ये जो फ्रूट गार्डन है हमारा उसमें से फ्रूट्स को खा जाया करता है। माई फ्रूट मार्केट इज़ रनिंग एट ए लॉस, और जिसकी वजह से जो मेरा फ्रूट मार्केट है उसमें मेरा घाटा हो रहा है। सो ही समाउंड हिज मिनिस्टर्स एंड ऑर्डर्ड एजुकेट द बर्ड, इसलिए उन्होंने समाउंड मीन्स टू कॉल, ओके, तो उन्होंने अपने मिनिस्टर्स मंत्रियों को बुलाया और उनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? एजुकेट द बर्ड, इस चिड़िया को, इस पंछी को पढ़ाओ, इसे शिक्षा दो, इसे एजुकेट करो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग द पैरट फेल अपॉन द किंग्स नेफ्यूज़, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस पैरट को एजुकेट करने का वो राजा के नेफ्यूज़ के कंधों पर आ गई। एंडलेस आवर्स वर स्पेंट इन डिस्कशन बिटवीन ग्रेट स्कॉलर्स, घंटों बिताए गए, व्यतीत किए गए डिस्कशन करने में बिटवीन ग्रेट स्कॉलर्स, जो उनके स्कॉलर्स हो, जो उनके राज दरबार के जो स्कॉलर्स थे, जो उनके रॉयल स्कॉलर्स थे, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ इस चीज़ को लेकर के कि कैसे, क्या रीज़न है, कैसे उसको, क्या रीज़न है कि वो इलिटरेट है, कैसे उसको लिटरेट किया जाए, सारी चीज़ें डिस्कस की गई। द मोस्ट प्रेसिंग क्वेश्चन वॉज, एक ऐसा क्वेश्चन जिस पर सबसे ज़्यादा दबाव डाला जा रहा था, वो क्या था? व्हाट इज़ द काज ऑफ दिस बर्ड्स इग्नोरेंस, कि इस बर्ड्स के इग्नोरेंस का जो कारण है वो क्या है, मतलब ये जो चिड़िया है वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है, इसे इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, उसका कारण क्या है कि ये क्यों इस तरह से बिहेव कर रही है कि किसी भी कस्टम्स को नहीं फॉलो करती है, रूल रेगुलेशन को नहीं फॉलो करती है, किसी भी स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ती है, मतलब इसके पास कोई नॉलेज नहीं है और ये सीधे इग्नोर कर देते हैं। राजा को देखकर भी मतलब उनको, उनके लिए भी उनको सलाम नहीं करती है, ऐसी सारी चीज़ें। तो इसके लिए उन्होंने रीज़न ढूंढना स्टार्ट किया। आफ्टर मच डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन मीन्स काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श करने के बाद, बहुत ज़्यादा गहन विचार विमर्श करने के बाद, ठीक है, आफ्टर मच डेलिब्रेशन, काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन करने के बाद, एक दूसरे के आइडियाज़ लेने के बाद, इट वॉज प्रोनाउंस्ड, ये तय किया गया, दैट द रीज़न द बर्ड वॉज बिनाइटेड, बिनाइटेड मीन्स इलिटरेट, कि जो रीज़न इसके, मतलब उस बर्ड के इलिटरेट होने का जो रीज़न था वॉज, ये था बिकॉज ऑफ इट्स नेस्ट, कि उसका जो उसका घोंसला था वो उसका रीज़न था, कि जिस घोंसले में वो रहता था, ठीक है, उस घोंसले की वजह से वो इलिटरेट था। द नेस्ट इज़ मेड ऑफ यूजलेस स्ट्रॉज एंड ट्विक्स, जो नेस्ट है, उसका घोंसला है, वो क्या है? एक बेकार से घास फूस और तिनकों से मिलकर के बना हुआ है। एंड इट इज़ टू स्मॉल टू कंटेन इनफ नॉलेज, दे सेड, और ये इतना छोटा है कि इसमें मतलब बिल्कुल ज्ञान नहीं लिया जा सकता, इसमें ज्ञान कंटेन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, उन जो मंत्री थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने ये बाद में रिजल्ट, मतलब जो भी था उस डिस्कशन का रिजल्ट निकला, यही निकला। डिलाइटेड विद द असेसमेंट्स ऑफ द रॉयल स्कॉलर्स, एवरीवन सेड, जो रॉयल स्कॉलर्स की, जो विद्वान थे, जो उनके शाही दरबार के जो विद्वान थे, उन्होंने जो ये अपना डिसीजन सुनाया घोंसले वाला, उस पर लोगों ने खुश होकर के उनकी तारीफ में क्या कहा? व्हाट अ ग्रेट एनालिसिस, क्या बात है, क्या एनालिसिस किया आपने। द स्कॉलर वेंट होम मैरिली आर्म्ड विद फीस एंड गिफ्ट्स, और जो स्कॉलर्स थे उनको ढेर सारा गिफ्ट
पैसे दिए गए, वेतन दिए गए, ठीक है, उनको पैसे दिए गए हैं इस चीज़ के लिए, और ढेर सारा गिफ्ट दिया गया, जिसकी वजह से वो स्कॉलर्स क्या हुए, अपने घर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर के गए। द गोल्ड स्मिथ वॉज कॉल्ड अपॉन एंड टास्क्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ गिल्डेड केस। जौहरी को बुलाया गया और उसको एक काम दिया गया विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व के साथ, ऑफ मेकिंग ए गिल्डेड केज, एक सोने का पिंजड़ा बनाने के लिए, जिस मतलब जो काफ़ी कंफर्टेबल हो, जिसमें वो आराम से रह सके, तोता जो है, पैरट जो है, वो आराम से रह सके, उसे किसी तरीके की कोई कमी महसूस ना हो। ही मेड सच एन एक्विसाइट केस, उसने एक बहुत सुंदर, एक्विसाइट मीन्स मोस्ट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, ठीक है, ही मेड सच एन एक्विसाइट केस, उसने इस तरीके एक प्रकार का इतना बढ़िया एक सुंदर घोंसला बनाया, पिंजड़ा बनाया, दैट पीपुल फ्रॉम फार एंड वाइड रश टू हैव अ लुक एट इट, कि लोग दूर दूर से उसे देखने के लिए आते थे। वन सेड, किसी एक ने कहा, सच अ ग्रेट एंडिएवर फॉर एजुकेशन, ये शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा महानतम प्रयास है। अनदर कमेंटेड, किसी दूसरे ने कमेंट किया, इवन इफ द बर्ड इज अनेबल टू लर्न, एट लीस्ट इट हैज़ अ ब्यूटीफुल केस, हाउ लकी, क्या हुआ अगर ये जो चिड़िया है वो मतलब लिटरेट नहीं हो पाया, फिर भी इसके पास एक इतना लग्जरियस, एक सुंदर सा लग्जरियस पिंजड़ा तो है, कितना लकी है ये। द गोल्ड स्मिथ वॉज पेड हैंडसमली एंड ही वेंट अवे लाफिंग विद ग्ली, उस गोल्ड स्मिथ जौहरी को काफ़ी अच्छा खासा पैसा पेड किया गया, एंड ही वेंट अवे, और उसे वो चला गया, लाफिंग विद ग्ली, खुश प्रसन्नता के साथ हंसते हुआ अपने घर चला गया। द पंडित केम टू एजुकेट द बर्ड, पंडित मीन्स जो विद्वान थे, उनको बुलाया गया उस चिड़िया को पढ़ाने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, अ फ्यू बुक्स वोंट डू, कुछ चंद किताबें इसके नहीं सिखा सकती। लॉट्स ऑफ स्क्रिप्चर्स आर नीडेड टू टीच दिस फुलिश बर्ड, बहुत सारी किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे शिलालेखों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस चिड़िया को पढ़ाने के लिए। द किंग्स नेफ्यूज देन कॉल्ड फॉर द स्क्राइब्स मीन्स होता है जो लिखने का काम करते हैं, ठीक है। किंग्स के नेफ्यूज़ जो थे, उन्होंने बहुत सारे स्क्राइब्स को बुला लिया, लिखने वालों को, लोगों को बुला लिया। द स्क्राइब्स बिगेन टू मेक कॉपीज़ फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, और स्क्राइब्स ने कॉपी बनाना स्टार्ट कर दिया उन मैन्युस्क्रिप्ट से। मैन्युस्क्रिप्ट होती है जो भोजपत्र होते हैं, जिन पे मतलब बहुत सारे नॉलेज लिखे होते हैं, लोग पहले पत्तों पे लिखा करते थे, ठीक है, तो उस पे जो नॉलेज लिखे थे उसकी एक कॉपी पे कॉपी बनाते चले गए। एंड दे मेड सेवरल मोर कॉपीज़ फ्रॉम दिस, और उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी कर करके बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स बना डाले। एवरीवन अप्लाउडेड, सभी ने उनकी प्रशंसा की, एंड सेड, और कहा, ब्रावो, शाबाश, व्हाट अ ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉलेज, कि आपने क्या ज्ञान का पहाड़ ही खड़ा कर दिया एकदम से। द स्क्राइब्स हैड देयर बुलक कार्ट्स फिल्ड विद जनरस रिवॉर्ड्स, जो स्क्राइब्स थे, जो लिखने वाले थे, उनके बुलक कार्ट को, उनके बैलगाड़ियों को खजानों से भर दिया गया, मतलब बहुत सारे बहुमूल्य रिवॉर्ड्स दिए गए। दे वेंट होम हैप्पियर and richer than ever before and never began had to worry about making their ends meet, वो अपने घर खुशी खुशी वापस लौटे, और पिछली बार मतलब जितने वो अमीर कभी नहीं थे उससे कई गुना ज़्यादा अमीर हो चुके, और इतने ज़्यादा अमीर हो चुके कि उन्हें अब कभी भी किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। मीन्स उन्हें वो कमाए या ना कमाए, वो कभी भी उनको इसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। उनको 2 टाइम का खाना, और भी लग्जरियस खाना मिलने वाला था, इतना ज़्यादा पैसा उनके पास हो चुका था। The nephews were overly cautious about the upkeep of the valuable gilded case, जो nephews थे वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉशियस थे। कॉशियस मतलब काफ़ी ज़्यादा सचेत रहते थे, उसी मतलब देखते रहते थे कि मतलब क्या, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में रहते थे। अबाउट द अपकीप मीन्स रख रखाव, देखना, उसका देखभाल करना, ऑफ द वैल्यूएबल गिल्डेड केस, उस मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, जो मूल्यवान जो गिल्डेड केस था जिसमें उस पंछी को रखना था, उसके लिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या रहते थे, एक्टिव रहते थे।
दे इंश्योर्ड इट्स क्लीनिंग पॉलिशिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो सुनिश्चित करते थे, वो इंश्योर करते थे कि इसकी सफाई हमेशा होती रहे, पॉलिशिंग टाइम टू टाइम होती रहे, नेसेसरी रिपेयरिंग जो भी ज़रूरत हो रिपेयरिंग की उसको किया जाए, एंड टाइमली मेंटेनेंस, और उसको टाइम टू टाइम मेंटेन किया जाए। एवरीवन सेड हाउ सेटिस्फैक्टरी द प्रोग्रेस इज, सभी ने कहा कि क्या बात है, कितना मतलब कितना अच्छे से काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा संतोषजनक काम हो रहा है। हंड्रेड्स वर एम्प्लॉयड फॉर द जॉब, सैकड़ों लोगों को उनकी जॉब किस चीज़ के लिए जॉब पे रखा गया कि वो उसकी पॉलिशिंग करे, क्लीनिंग करे, कोई नेसेसरी रिपेयरिंग करे, टाइमली मेंटेनेंस रखे, इन सारी चीज़ों को मतलब उसके रख रखाव के लिए सैकड़ों लोगों को बुलाया गया। एंड टू कीप एन आई ऑन दीज एम्प्लॉइज, और इन जो जिन 100 लोगों को जॉब दिया गया, 100 से अधिक लोगों को जॉब दिया गया, उन लोगों पे नज़र रखने के लिए उतने ही एम्प्लॉइज़ और रखे गए, 100 मोर वर हायर्ड, और कुछ और एम्प्लॉइज़ रखे गए। All of them drew fat paychecks and filled their chests with valuables. All of them drew fat paychecks. सबको मतलब सब वहाँ से लेकर जाया करते थे फैट पेचेक्स, मतलब एक मोटी रकम, फैट पेचेक्स मतलब एक मोटी रकम, अच्छा खासा पैसा लेकर जाया करते थे। एंड फिल्ड देयर चेस्ट्स, और अपने चेस्ट में तिजोरी, ठीक है, खजाना, खजाना बोलते हैं इसको, इस तरह से कह सकते हैं। तो खजाने को मतलब अपने खजानों को भर लिया विद वैल्यूएबल्स, बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात से भर लिया उन्होंने। देयर ब्रदर्स, उनके भाइयों, रिलेटिव रिश्तेदारों, इवन देयर हाफ ब्रदर्स, और उनके जो सगे संबंधी थे, हाफ ब्रदर्स कहने का मतलब जो सगे संबंधी थे, लाइव्ड इन ऑपुलेंस, काफ़ी ज़्यादा धनी हो चुके थे, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा हो चुका था। सो फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर, and we will discuss the story further in the next lecture. So I hope कि आपको अच्छा लगा होगा स्टोरी यहाँ तक, और आप ईगर होंगे आगे की स्टोरी जानने के लिए। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।